कि अगर हम स्ट्रेटेजिकली की बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो सिमिलर डेफिनेशन कहते हैं software engineering is the establishment of use of sound engineering principle in order to obtain economically software that is reliable and work especially on the real machine. Okay, और IEEE कहता है कि software engineering number one, the application of systematic discipline quantifiable approach to the development, operation and maintenance of the software. और अगर हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म में कि नंबर 2 जो कहता है स्टडी एंड अप्रोच ऑफ क्या, स्टडी एंड अप्रोच ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वांटिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर, दैट इज द फुल डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इस डेफिनेशन को ही हम लोग आगे चल के बात करेंगे। अगर हम एग्जाम में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, more and more individual and society rely on the software systems. We need to able to produce reliable and trustworthy system economically and quickly. It is usually cheaper in long term to use software engineering method and technique for the software system rather than just write the program. And if it is a personal programming project, for most type of system the majority of costs are the cost engine and software that is cost. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, ये जो डेफिनेशन आपके सामने है, यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूं इस चीज को। तो पहला है सॉफ्टवेयर क्या है, क्लियर? यस सर। डाउट क्लियर या नहीं? यस सर। डाउट क्लियर हो गया? सॉफ्टवेयर क्या है ये क्लियर हो गई? तो सॉफ्टवेयर कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन software products may be developed for a particular customer or may be developed for the general market. Okay, what are the attributes of the good software? So good software should deliver the required functionality and performance to the user and should be maintainable, dependable and usable. Okay, कोई डाउट? नो सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे, बोलो। So what are the attributes of the good software? Good software should deliver the required functionality and performance to the user and should be maintainable, dependable and usable. Third, what is software engineering? Software engineering is the engineering discipline that is concerned with all aspects of the software production. Or what is the difference between software engineering and computer science की बात अगर करते हैं तो computer science focus on the theory and fundamentals, और software engineering is concerned with the practices, okay, of developing and delivering useful information. समझ में आ गया कंप्यूटर साइंस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? यस सर। Okay, और next is what is the difference between the software engineering and system engineering? So system engineering is a concern with all aspects of computer based system development including hardware, software and process engineering, और software engineering is a part of this more general process. ये डेफिनेशन लेके हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम इस चीज को थोड़ा सा कंप्यूट कर रहे हैं और थोड़ा सा क्लोज कर रहे हैं, यहाँ तक खत्म करेंगे हम। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। तो नंबर 1, सॉफ्टवेयर मस्ट बी मेंटेनेबल। ओके, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर को हम मेंटेन नहीं करें। जैसे आपका एंड्रॉइड अपडेट होता है क्या? यस सर। कितने दिन में अपडेट हो जाता है सर एंड्रॉइड हर साल में एक बार रिलीज निकालता है, अपडेट होता है ना, आपसे बोलता है ना अपडेट करने के लिए। इसका मतलब सॉफ्टवेयर शुड बी रिटन इन सच वे, इस तरह से लिखना चाहिए सो दैट इट इज इवॉल्व टू मीट द चेंजिंग नीड ऑफ कस्टमर। ठीक है, कि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला। दिस इज अ क्रिटिकल एट्रीब्यूट बिकॉज़ सॉफ्टवेयर चेंज इज द इनएविटेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि जो ड्रेस आज पहन रहे हो वो ड्रेस 5 साल के बाद नहीं पहनेंगे। अगर हम बचपन में छोटा ड्रेस पहनते थे और जिस तरह के कलर पहनते थे, हो सकता है आज नहीं लगता है अच्छा। लगता है क्या? अरे लगता है क्या? ओके, नो सेकंड, डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के बात। सॉफ्टवेयर डिपेंडेबल इंक्लूड अ रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी कॉज फिजिकल और इकोनॉमिक डैमेज इन द इवेंट ऑफ द सिस्टम फेलियर, और मैलिशियस यूजर शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस और डैमेज द सिस्टम। कहने का मतलब कि अगर हम आपको एडमिट करते हैं कि क्लास में आओ, तब आप आ पा रहे हो, अपने आप तो नहीं आ पा रहे हो ना? हैं? नो सर।
और अभी जो है पूजा जो है उसको 3 बार 4 बार एडमिट किया था मैं, एडमिट करने के बाद फिर वो भाग जाती और मैसेज दे रही है मेरे को कि सर मेरे को ऐड करो। ओके, नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी। सॉफ्टवेयर शुड सर नॉट, ऐड ही नहीं हो रही थी, मैं भाग नहीं रही थी, ऐड ही नहीं हो रही थी मैं। मेरे को लगता है कि आपकी और पूजा आप जा रहे थे कि ऐड करके, चलो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। ओके, वी विल डिस्कस दिस इज, आई एम नॉट ब्लेमिंग थिंग, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था, पता नहीं ये टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाती है, वो किसी डिप से आई, आई डोंट नो अबाउट दैट, नो प्रॉब्लम। यस सर। Okay. Next is the efficiency. Software should not make wasteful use of the system resource such as memory और processor. ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम में hello hi लिखते लिखते समय बर्बाद कर लें, है ना? My name is X, Y Z, my name com, I went there like that. So should not be like that this comment. कमेंट नहीं लिखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अगर आप किसी से मिलने जाते हो तो टू द पॉइंट बात करो, नहीं कि हम बता दें कि कितने है, क्या है, किस तरह का है, कौन सा कलर पहना है, कैसे आ रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, नो नॉट एट ऑल। ओके, so efficiency should be there. Software should not make useful and should not make wasteful use of the system resource such as memory and process cycle. Efficiency therefore includes responsiveness and processing and memory utilization. Last is the acceptability. Software must be acceptable to the type of users for which it is designed. This means that it must be understandable, usable and compatible with the other system and they use. मतलब कि अगर हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर बनाया तो ऐसा नहीं है कि मैक पे वो ना चले और लिनक्स पे नहीं चले, और लिनक्स पे बनाया तो विंडो पे नहीं चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज। अभी मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि सर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर जो है स्पेन में नहीं चल रहा है। हम बोले स्पेन में नहीं चल रहा है क्यों? भाई मैंने तो सॉफ्टवेयर बनाया, हमारे यहाँ तो चल रहा है, लंदन से इन्फॉर्मेशन आ रही है वहां चल रहा है, जापान से इन्फॉर्मेशन आ रही है वहां चल रहा है, और मैं जो सॉफ्टवेयर बनाया वो स्पेन में नहीं चल रहा है। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उसके पास वहां के जो सिस्टम है, वहां के सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसके जो वायरस है वो वायरस उसको इंट्रोड कर दिया है, फायरवॉल इंट्रोड करके रखा है, और वो ये हमको ब्लेम कर रहा है कि सर आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो स्पेन में नहीं चल रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम वहां है और ब्लेम किस पे आ रही है? आप पे, आप पे, मेरे पे आ रही है, और ब्लेम आ रही है कि मैं सॉफ्टवेयर, जबकि ये लंदन में ऑलरेडी चल रही है, यूएसए में ऑलरेडी चल रही है, जापान में अलग चल रही है, इंडोनेशिया में अलग चल रही है, और इंडोना में अलग चल रही है, ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर स्पेन में नहीं चल रहा है तो स्पेन की प्रॉब्लम, मैं तो स्पेन जा नहीं सकता अभी, यस सर। हाँ, लेकिन Yes, स्पेन के sir. सिस्टम को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ पे इजिली कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, रिमोट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस टूल्स को। तो आज के लिए हम एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर पे छोड़ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पे, तब हम बात करेंगे कि आगे कैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केसेस में फिर प्रोसेस मॉडल की बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। Yes, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।